Arihan Prabhu, how's your health? कैसा है तबीयत अरिहन केमन আছে শরীর Hare Krishna Prabhu. Yes, it's good now, Prabhu. I've recovered fully. And right now the platelet counting is around. I am good, Prabhu. And hello. ऑटोमेटिक लेता है आज भी Hello. थोड़ा होल्ड करो यस आर्यन কেমন আছে শরীর Yes, Hare Krishna Prabhu. I am good now, Prabhu. এখন ঠিক আছি। জ্বর নেই তো এখন না জ্বর তো আর নেই। প্ল্যাটেলেট কাউন্টিং মোটামুটি 1,65,000 হয়ে গেছে। ওকে হরি বল যেগুলো বলেছিলাম খেয়েছিস আপনাদের প্রেয়ার্স গুলো কাজ করেছে। হ্যাঁ প্রভু, কিবি ফ্রুটস খেয়েছি, আর মোসাম্বি টোসাম্বি বলেছেন ওগুলোও খেয়েছি। ভিটামিনস কিছু ক্যাপসুলস নিচ্ছি। তো মোটামুটি রিকভারিটা খুব তাড়াতাড়ি আর খুব সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ পেঁপেও খেয়েছি। পাতার রস হ্যাঁ ওগুলোও খেয়েছিলাম। ওগুলো ডাক্তার সাজেস্ট করে ওগুলো কাজ করে আর এক্সট্রা হচ্ছে অ্যাপিটাইটের জন্য আপনি বলেছিলেন ডোসা খেতে, তো ডোসাও আমি খেয়েছি বাড়িতে বানিয়ে, সেটাও হেল্প করেছে কিছুটা। অ্যাপিটাইটটা একদমই ছিল না। কে বানালো? বোন বানিয়েছে। পারে বানাতে কি? হ্যাঁ বোন বানাতে পারে ডোসা। হ্যাঁ ভালো। থ্যাংক ইউ প্রভু, আপনাদের সবার প্রেয়ার্স খুব সুন্দরভাবে কাজ করেছে। এত তাড়াতাড়ি রিকভার করবো ভাবতে পারিনি। ভগবানের ব্লেসিংস, আর তুমি এত সেবা করো, তাই ভগবান তো তোমাকে আশীর্বাদ করবেই। হরি বল। ওকে আশু প্রভু, কৃষ্ণ। অভিজিৎ মন্ডল এখানে না? ওকে বেরিয়ে যেতে পারেন। बाबू राय प्रभु, कृतिका माता जी, कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु, मधुमिता मंडल, हरे कृष्ण प्रभु, मीना शाह, नेहा सिंह, नीतीश प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रियंका प्रसाद, रক্তিम बनिक, हरे कृष्ण प्रभु, हरि बोल। संदीप भौमिक, संतोष चैतन्य प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। संतोष चैतन्य को फीवर है क्या? हाँ तो फीवर हो गया था, तो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सबका फीवर हो रहा है। দুজন ভক্তের প্রসাদ রাখতে পারে দেখি থেকে না, কিচেন থেকে। অ্যাকচুয়ালি আমার বাবার একটা গেস্ট আসবে, তো আমি তো মন্দিরে নেই, আর বাবাও মানে বাইরে আছে, তো আমি তোমাকে ওনার নাম্বারটা দিয়ে দেবো, আর ওনাকে তোমার নাম্বারটা দিয়ে দেবো। তুমি প্লেট বানিয়ে রেখে দাও, ওরা না আমার বাবাকে অনেক হেল্প করে বাড়িতে। রাখতে পারবে?
তুমি দেখো যদি প্রসাদ তো বেশি থাকে, আর যদি দরকার হয় তাহলে তুমি আমার নামে অ্যাকাউন্ট দিয়ে দিতে পারো, বা অ্যাকাউন্ট তো এখন নেবে না মনে হচ্ছে, টাইম ওভার হয়ে গেছে। এখন তো 1:30 বেজে গেছে। হ্যাঁ, ও তখন জিজ্ঞাসা করবে, তখন তো কাউন্টে চলবে কিনা জানি না। দরকার হলে তোমাদের টাকাটা তুমি পে করে নাও, আমার থেকে নিয়ে নেবে। আমাকে আমাকে একটু মনে করিয়ে দেবে, আমি তোমার 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 অনলাইন অ্যাকাউন্ট আছে কিছু? তাহলে আমি মনে করাতে হবে, পরে আমি বলে যাবো। ঠিক আছে, নিয়ে নে, যদি ফর্মটা নিয়ে নেয় বলে মহাদামপুর দুজন ওনার বাড়ি থেকে এসেছিল, ঠিক আছে? ওনার 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 আমাদের স্কুলেরই অ্যাকচুয়ালি, স্কুলের স্কুলে আমাকে ইয়ে করে মেসেজ করো, হোয়াটসঅ্যাপ করো, প্রসাদ দেখেছি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আমি তোমার নাম্বারটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? हरि बोल। শুভঙ্কর বাবাকে ফোন করে বলো শুভঙ্কর প্রসাদ রাখবে, ঠিক আছে? শুভঙ্কর প্রসাদ চেনে বাবা। আর বাবার থেকে ওই আসবে, তার নাম্বারটা তুমি পাঠিয়ে দাও শুভঙ্করকে, আর শুভঙ্করের নাম্বারটা বাবাকে দিয়ে দাও, ঠিক আছে? ओके, सन्मय प्रभु, सायन मुखर्जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। सौमिली माता जी, सोमदीप सेनगुप्ता, सुरजीत प्रभु, तपन मुखर्जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। सोमदीप, ओके। संतुष्ट चेतन प्रभु, आपका हेल्थ का केयर करिए, जल्दी स्वस्थ हो जाइए। बहुत लोगों का बुखार हो रहा है, सीजन है हालांकि, फिर भी आप लोग स्वस्थ रहिए। जन्माष्टमी है, उसके पहले स्वस्थ हो जाइए, बीमार मत करिए, कुछ नहीं कर पाएंगे। आज तक तो हो जाएगा, ठीक है, बहुत दिन हो हाँ? गया, और काफी दिन हो गया, आज ठीक हो जाएगा मुझे लग रहा है। थोड़ा सा डाइट ठीक रखिए, 5 दिन हो फ्रूट्स गया। लीजिए, फ्रूट्स, जूसेस। वायरल फीवर में बहुत वीकनेस हो जाता है। रोज मेरे रूम में जाइए और पीछे जो विंडो है विंडो में लगा चश्मा। तो आज हम लोग बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण चीज चर्चा करने वाले हैं। हम लोग जन्माष्टमी कथा के चौथे पर्व में है, फोर्थ एपिसोड में है। कल हम लोग जहाँ पर खत्म किए थे उधर से हम लोग शुरू करेंगे। अभिषेक को ज्वाइन कर सकता है अमित? अभिषेक को ज्वाइन कराओ। यस प्रभु। तो एकं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गुणकारिणम्। हरे कृष्णा। तो पहले पर्व में हम लोग बलराम जी के तत्व के बारे में हमने चर्चा किया है, बलराम जी की पोजीशन। और दूसरे पर्व में, दूसरे एपिसोड में हम लोग चर्चा की है
इस प्रकार बलराम जी अलग अलग असुरों का विनाश करते हैं जो अलग अलग अनर्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे प्रलंबासुर हमारे हृदय के कपट भाव उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और धनुकासुर जो है अज्ञान या मिथ्या अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रोप्राइटरशिप, स्वामित्व। तो बलराम जी ये सभी अनर्थों रूपी असुरों का विनाश करके हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं कि हम लोग भगवान को प्राप्त कर सके। तो बलराम जी के प्रतिनिधि के रूप में श्री गुरुदेव शिष्य को मदद करते हैं किस प्रकार ये सारे जो अनर्थ हैं इससे हम लोग बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसके माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु के सहायता के बिना या हरिनाम हमें प्रेम प्रदान कर सकता है, लेकिन सही तरीके से हरिनाम करने के लिए, अनर्थ से मुक्त होकर हरिनाम करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु के सहयोग के बिना, गुरु के गाइडेंस के बिना एक साधक भक्त शुद्ध हरिनाम नहीं जप कर सकता। तो इसलिए हरिनाम दीक्षा की आवश्यकता है, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु की आवश्यकता है, जिनकी सहायता से हम लोग हमारे हृदय की कपटता को या हमारे जीवन में, हमारे हृदय में जो अलग अलग प्रकार के दुर्गुण हैं उनसे हम लोग बाहर निकल सकते हैं। मिथ्या अहंकार है। तो गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, और जब हम लोग गुरु और कृष्ण, गुरु और वैष्णवों के पास जाके हम लोग निष्कपट भाव से हम लोग आत्मनिवेदन करते हैं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, সেই काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण, तब कृष्ण आत्म अपना कर लेते हैं। जब भगवान के प्रतिनिधि के पास हम लोग, या बलराम जी के पास, बलराम जी के प्रतिनिधि, तो इसलिए साधक भक्त शुद्ध हरिनाम तभी जप कर पाएगा जब गुरु के प्रति बहुत विश्वस्तता के साथ, वफादारी के साथ गुरु के आदेशों का पालन करेगा, गुरु के सामने झुकेगा, तब उनके अहंकार कम होगा, अहंकार नष्ट होगा। और तो तब अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा में प्रवेश कर पाएगा। गुरु शक्ति प्रदान करते हैं अनर्थों को छोड़ने का। इसलिए आदि गुरु का नाम है बलराम, बल देते हैं अनर्थों को छोड़ के कृष्ण की सेवा करने, इंद्र की सेवा छोड़ के कृष्ण की सेवा करने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो इस संदर्भ में हम लोग चर्चा क्लियर कर रहे थे, कल सुने थे इस प्रकार देवकी के कृष्ण आविर्भाव के पहले देवकी का 6 पुत्र का मृत्यु होता है, और 6 पुत्र 6 अनर्थ जो है हमारे हृदय में उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो धनुकासुर मिथ्या स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, और प्रलंबासुर कपटता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
उसी प्रकार ये देवकी का जो क्षय पुत्र है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, क्षय जो शत्रु हमारे हृदय में रहता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब तक हम लोग इस क्षय अनर्थों से मुक्त नहीं होंगे, हमारे हृदय में रहेगा, तब तक कृष्ण का प्राप्ति नहीं होगा। हम लोग कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जन्माष्टमी का अर्थ क्या है? जन्माष्टमी कृष्ण का आविर्भाव हुआ है, तो हमारे हृदय में अगर कृष्ण का आविर्भाव कराना है तो हमें कैसे जन्माष्टमी सेलिब्रेट करना पड़ेगा? हाँ, हृदय को शुद्ध करके कैसे जन्माष्टमी सेलिब्रेट करना पड़ेगा? हमें जन्माष्टमी उत्सव इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए कि हमारे हृदय इस क्षय असुर जो है इससे मुक्त हो जाए और गुरु का कृपा प्राप्त हो। क्षय असुर का विनाश हुआ, फिर बलराम प्रकट हुए। बलराम जी प्रकट होके वो सारे स्थान को साफ कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, देवकी के गर्भ को शुद्ध कर देते हैं और फिर कृष्ण आविर्भाव होते हैं। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अगर भगवान के आविर्भाव करना है तो हमें ये सारे जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो अनर्थ गुरु की कृपा से जा सकता है, इसको हमें त्याग करना है और गुरु वैष्णवों के प्रति ओबीडियंट, वफादार होना है। तो तब क्या होगा? हमारे कपटता चला जाएगा, अहंकार चली जाएगी, तब हमारे हरिनाम के द्वारा हमारे हृदय और साफ हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि गुरु हमें दीक्षा होता है या दीक्षा के पहले हम आश्रय लेते हैं और गुरु आदेश करते हैं 4 नियमों का पालन करो। गुरु आदेश करते हैं कि विनम्रता के साथ सेवा करो। गुरु आदेश करते हैं कि काम, क्रोध, लोभ को परित्याग करो। इस प्रकार गुरु के आदेश के अनुसार जब हम लोग इसको छोड़ देते हैं, तब क्या होता है? हमारे हृदय में जो कृष्ण भक्ति है वो प्रकट होता है। आदेश के अनुसार हरिनाम का जप करते तब हमारे हृदय में जो कृष्ण भक्ति है, प्रेम है, वो जागृत होता है। इस प्रकार हम लोग चर्चा किए थे अभी तक। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ये देवकी का जो क्षय पुत्र था, इनका ये पूर्व जीवन में क्या थे और कंस का पूर्व जीवन में क्या थे और क्यों इनका मृत्यु हुआ। अभी तक हम लोग चर्चा किए हैं क्षय पुत्र का मृत्यु का अंतर्निहित कारण है, मुख्य कारण है और एक गौण कारण है। तो कल हम लोग जब चर्चा कर रहे थे कि देवकी और वसुदेव का जब विवाह हुआ तो आकाशवाणी हुआ, कल चर्चा कर रहे थे ना हम लोग।
और फिर वसुदेव ने कंस को थोड़ा समझा के उनको सारा जो ये था वो सॉल्यूशन कर दिया था, उन्होंने छोड़ दिया था, अपने घर चले गए थे वसुदेव देवकी आनंद से। कंस ने माना नहीं, लेकिन जब ऐसा हुआ तब क्या हुआ? नारद मुनि आ गए। नारद मुनि आके क्या कहा? लोटस का मैथमेटिक्स बताया। बोला कौन सा पुत्र 8 नंबर होगा कैसे पता? देवता लोग बहुत मायावी होते हैं, कोई भी बच्चा 8 हो सकता है। और कमल का इस पंखड़ी को 1 नंबर पकड़ेंगे, ये 8 है, और इसको अगर 1 नंबर पकड़ेंगे तो ये 8 है। कोई भी 8 हो सकता है ना? मैथमेटिक्स में ऐसा हिसाब होता है, वैदिक मैथमेटिक्स में ऐसा हिसाब होता है। पहले कुछ अजम्पशन होता है, ये इक्वल टू 20 पकड़ के कुछ सोल्यूशन बनाया जाता है ना? ये सारा मैथमेटिक्स रिलेटिव है। नारद मुनि कह रहे हैं रिलेटिव है, किसी कंडीशन में वो सही है, लेकिन वो कंडीशन एप्लीकेबल है कि नहीं वो क्वेश्चन है। सब भ्रमित हो जाता है, सही बोल रहे हैं। और देवता लोग बहुत मायावी होता है, छोड़ना नहीं चाहिए। तब नारद मुनि क्या करते हैं? कंस को उनका पास हिस्ट्री बताते हैं। बोलते आपका बायोडाटा मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको, आपका पास्ट लाइफ में आपका क्या क्या डेटा है। तो कंस को तो ये असुर लोगों का भी श्रद्धा है नारद मुनि के प्रति। नारद मुनि ऐसे एक व्यक्ति है। तो नारद मुनि बोलते हैं कि असल में आप अपने पिछले जीवन में काल निमि नाम के एक असुर थे। तो नहीं बोलते उनको काल निमि नाम के एक राक्षस थे, और आपके पिता का नाम था हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु के पुत्र थे आप, और भगवान विष्णु के हाथ में आपका मृत्यु हुआ। तो कंस का क्रोध और ईर्ष्या विष्णु के प्रति और बढ़ गया। फिर से मानना है मैंने। और उन्होंने कहा उस समय आपका 6 पुत्र था। 6 पुत्र जो है ये हिरण्यकशिपु ने उनको शाप दिया था। ये 6 पुत्र जो था, इन्होंने हिरण्यकशिपु के आज्ञा के बिना ब्रह्मा जी का तपस्या करने के लिए चले गए थे, और उनको तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया, और प्रसन्न करके उनको वर प्राप्त हुआ कि किसी भी देवता से उनका मृत्यु नहीं होगा, किसी भी मनुष्य से उनका मृत्यु नहीं होगा, और किसी ब्राह्मण के शाप से उनका मृत्यु नहीं होगा। इस प्रकार वरदान लेके आ गए, जो वरदान हिरण्यकशिपु प्राप्त करना चाहता था। अभी हिरण्यकशिपु सोच रहा था, एक तो मेरे आज्ञा परमिशन के बिना तपस्या करने के लिए चला गया, कोई सीनियर रीति फॉलो नहीं किया, परंपरा फॉलो नहीं किया, मेरा आज्ञा के बिना ही चला गया। इतना दुस्साहस। और दूसरा, मेरे जैसा बनना चाहता है। हिरण्यकशिपु को ऑलरेडी थोड़ा इनसिक्योरिटी फील हो गया कि मैं पूरे पृथ्वी अमर बनना चाहता हूँ,
और ये मेरा जूनियर होके मेरे से आगे जाना चाहता है। हिरण्यकशिपु को तो नंबर 1 बनना था और कोई उनका कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए। अरे अपने बच्चे को मारने के लिए छोड़ा नहीं तो पोता को क्या है कि नहीं? तो तुम्हारा इतना हिम्मत, तुमने वरदान प्राप्त कर दिया, पाप किया है कि तुमको देवता से हाथ से मृत्यु नहीं होगा, लेकिन मैं श्राप देता हूं तुमको, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हारा जन्म जो है वसुदेव के घर में होगा और वसुदेव के 6 पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म होगा और उनके कारण तुम्हारा मृत्यु होगा। इस प्रकार हिरण्यकशिपु जो है ये काल निमि के 6 पुत्र को अभिशाप देते हैं और बोलते तुम्हारा पिता काल निमि कंस के रूप में आएगा। तो इससे क्या होता है, कंस जो है, कंस का क्रोध यदु वंश के प्रति और विष्णु के प्रति और बढ़ जाता है। तो अभी नारद मुनि देख रहे हैं कि ये तो हिरण्यकशिपु के अभिशाप है और हिरण्यकशिपु के अभिशाप के अनुसार ये जो वसुदेव, क्योंकि नारद मुनि को ही केवल ये सब पता था, इनका जन्म होने वाला है वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में, और जब तक ये लोग नहीं मरेगा तब तक कृष्ण प्रकट नहीं होंगे, जब तक इनका जन्म नहीं होगा तब तक तो मृत्यु भी नहीं होगा। अभी अगर माता पिता को 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा मिल जाता तो क्या होता है, सुखी हो जाते हैं, हो गया और नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो इसलिए देवकी और वसुदेव का जो पुत्र है अगर उसका मृत्यु नहीं होगा, एक तो अभिशाप है, मृत्यु होगा ही, लेकिन अगर वास्तविक रूप से उसका मृत्यु नहीं होता है या 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा होने के बाद वो लोग खुश हो जाते हैं और उनको संतान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होता, तो क्या होगा, 6 बच्चे का मृत्यु नहीं होगा, और 6 बच्चे का मृत्यु नहीं होगा तो हाँ, कृष्ण का आविर्भाव भी नहीं होगा। और दूसरे ओर इस 6 बच्चे जो है 6 अनर्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये 6 अनर्थ जब तक नहीं जाएगा तब तक भगवान प्रकट नहीं होने वाले हैं, लीला के हिसाब से भी और तत्व के हिसाब से भी। लीला है 6 पुत्र का, 6 असुर का विनाश, तत्व है 6 अनर्थ। समझ में आ रहा है? इसलिए नारद मुनि बीच में एंट्री कर जाते हैं और पूरा ड्रामा को चेंज कर देते हैं और बोलते अरे तू कैसे को छोड़ दिया, तुमको पता नहीं, कोई भी 6 पुत्र 8 नंबर हो सकता है। तो और फिर उनको अपने पिछले जीवन के बारे में बताते हैं। तो ये सुन के एक कंस को क्रोध उत्पन्न होता है और फिर वो 2 चीज, एक तो उनको छोड़ दिया था, दूसरा है केवल 8 नंबर को मारेंगे, ठीक है, लेकिन अभी डिसीजन चेंज कर लिया, क्या जेल में डाल देंगे, और क्योंकि कोई भी 8 हो सकता है, और कोई भी बच्चे को मार देंगे, सभी बच्चे को मार देंगे। समझ में आ रहा है?
तो इस प्रकार नारद मुनि भगवान के प्राकट्य को और जल्दी किया, भगवान के आविर्भाव को और क्या कहते हैं, त्वरित किया या फास्ट किया। अगर भगवान को हमें जल्दी प्राप्त करना है, कलियुग में ऐसे आयु कम है ना, अगर चांस गवा दिया तो जागते रहिए, चांस गवा दिया तो अगले जीवन में भक्तों का संग मिलेगा कि नहीं पता नहीं। तो इसलिए इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करना है। अगर इसी जीवन में भगवान को अर्थात जल्दी प्राप्त करना है तो नारद मुनि जैसे आचार्यों की कृपा चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम लोग अलग अलग भौतिक कारण में इतना टाइम व्यतीत कर देंगे या भौतिक सुख को थोड़ा चखने के लिए। शास्त्र में तो लिखा है सुख नहीं है भौतिक जगत में, थोड़ा देख लेता हूं। देखने के बाद छोड़ देंगे तो उसमें उतना टाइम चला जाएगा कि आप भक्ति में मैच्योर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए नारद मुनि जैसे आचार्यों की कृपा चाहिए, जिनके कांटेक्ट में हम लोग रहेंगे, जिनके गाइडेंस में हम लोग रहेंगे, तो क्या होगा, हमारे आध्यात्मिक प्रगति क्या कहते हैं, द्रुत होगा, आध्यात्मिक प्रगति जल्दी होगा और हम लोग एक ही जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद आए हैं उसके लिए, तो कहते हैं कि चैंट, सिट डाउन, फॉलो फॉर रेगुलर प्रिंसिपल्स, 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, इसी जीवन में भगवतधाम ले जाऊंगा, इसी जीवन में भगवतधाम जा सकते। तो ये केवल एक जीवन अगर कोई 16 माला जप करते, 4 नियम पालन करते, भक्तों के संग में आते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद और जो महान आचार्यगण हैं, श्री गुरुदेव, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते, मौन आपका पैर पकड़ता, आप ये जो गुरुदेव है ये मुकुंद पृष्ठत्ते, गुरुदेव जो है भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही प्रिय है, प्रियजन है। तुम्हारा पतित पावन, तुमको उद्धार करने के लिए आए हैं, इसको हमेशा याद रखो। गुरु को कभी भी साधारण व्यक्ति के रूप में गलत मत समझो। बहुत दीक्षा के पहले हम लोग दीक्षा लेने के लिए बहुत सीरियस रहते हैं, भक्ति में आने के शुरुआत के दिनों में भक्ति के प्रति श्रद्धा रहते हैं। जैसे कुछ दिन बीत जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल, और फिर दीक्षा हो जाता है, तो धीरे धीरे हम लोग सब कुछ सस्ता लेने लगते हैं। अति परिचयात, बांग्ला में एक कहावत है, अति परिचयात अवज्ञा, अति परिचय अवज्ञा करा शुरू कर दिया। तो तখন কি হয়, আমরা ভক্তদের দোষ দেখা শুরু করি, গুরুদেবের মধ্যে দোষ দেখা শুরু করি, আর আমি মনে করি আমি নিজেই ভক্তি করে আমি ভগবান চলে যাব, গুরুদেবের অত দরকার নেই। तो अभी तो मैं इस्कॉन में जुड़ ही गया हूँ, अभी दीक्षा भी आ गया और अभी गुरुदेव को जरूरत नहीं है। ऐसा हमारे अंदर ये मायावादी टेंडेंसी है। मायावादी लोग क्या करते हैं, जब साधना में सिद्धि प्राप्त करते तो गुरु को छोड़ देते हैं और वो स्वयं गुरु या भगवान बन जाते हैं, मायावादी का ये। लेकिन वैष्णव या भक्ति के राज्य में गुरु के कृपा के बिना आप भक्ति को मैच्योर नहीं कर पाएंगे। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जब जाएंगे तब गुरु आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कृष्ण के साथ, गुरु आपको
कृष्ण के साथ इंट्रोड्यूस, कृष्ण के पास आपका परिचय कराएंगे और कृष्ण के किसी पार्षदों के अधीन में आप कृष्ण की सेवा करेंगे। समझ में आ रहा है? दास दासानुदास, ये स्वाभाविक आत्मा की स्वाभाविक वृत्ति। तो इसलिए जो रघुनाथ दास गोस्वामी 8 तत्व को हमेशा स्मरण करने के लिए बोला है, 8 तत्व को हमेशा याद रखने के लिए बोला है। उसका पहला है गुरु। गुरु गुरु या गुरु, गुरु मत प्लूरल नंबर है। गोष्ठे गोष्ठलायशु, इस प्रकार 8 तत्व को वो स्मरण करने के लिए बोल रहे हैं। तो नारद मुनि आते हैं और इस प्रकार देवकी और वसुदेव के जीवन में क्लाइमैक्स तैयार करते हैं और उनके जीवन में अचानक अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होता है। एक तरह कठिन परिस्थिति, एक विषम परिस्थिति उत्पन्न होता है। तो गुरु के अंडर में भी बहुत सारे हमारे अथॉरिटीज होते हैं, सेवा सर्विस अथॉरिटी, स्पिरिचुअल अथॉरिटीज, ऐसे अथॉरिटी होता है। उनको हमें गुरु के जैसे ही सम्मान करना चाहिए। तो बहुत बार हम लोग सोचते कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण को ही सम्मान करें, जैसे गुरु क्या उसके पीछे थोड़ा सा गुरु को सम्मान करते हैं। तो बाकी जो हमारे अथॉरिटीज होते हैं जिनके साथ हम लोग सेवा करते हैं उनको हम लोग ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे हृदय में कपटता का भाव रह जाता है। कपटता या मिथ्या अहंकार या अनअकाउंटेबिलिटी, इसके द्वारा इसके चंगुल में पड़ने का चांसेस रहता है ज्यादातर। तो इसलिए हमें गुरु के प्रतिनिधि या हमारे सर्विस अथॉरिटीज या हमारे स्पिरिचुअल अथॉरिटीज या भौतिक जगत में भी हमारा जो अलग अलग अथॉरिटीज होता है, पति के लिए पत्नी के लिए पति, बच्चे के लिए माता पिता, इनके पास ऑनेस्ट रहने के लिए प्रयास करना चाहिए, प्रयास नहीं रहना चाहिए। अगर एक्सेप्शनल केस में अगर वो लोग भक्ति के खिलाफ होते हैं, एक्सेप्शनल केस में अगर भक्ति के खिलाफ वो लोग बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? नहीं तो हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए। तो नारद मुनि कंस को इस प्रकार भड़काने के पीछे काल भी मैं कुछ कारण बोला था, आज भी एक कारण बताया हूँ। तो एक कारण है कि अगर नारद मुनि नहीं बोलते कंस को और कंस छोड़ देता उनको
तो फिर देवकी का जो पहला 6 पुत्र है उसका मृत्यु नहीं भी हो सकता, और जो अभिशाप में है, और जब तक वो अभिशाप पूरा नहीं होगा तब तक 8 नंबर जो अष्टम गर्भ के पुत्र है उसका जन्म नहीं होगा। इसलिए कृष्ण आविर्भाव होता ही नहीं अगर नारद मुनि आके नहीं बोलता है। समझ में आ रहा है? कृष्ण के आविर्भाव होता ही नहीं अगर नारद मुनि आके नहीं बोलते। तो टीवी सीरियल में लग रहा है कि नारद मुनि एक फनी कैरेक्टर है, ये सब मसाला देने के लिए टीवी सीरियल में थोड़ा अलग अलग प्रकार से दिखाया जाता है। लेकिन नारद मुनि किस लिए बोला है ये, और किस प्रकार उनका ये बोलने का कारण जो है, एक महान भक्तों का, महान आचार्यों का जो कार्यकलाप उसको पुष्टि करता है, वो नहीं बताया जाता है या वो नहीं समझाया जाता है। और इस प्रकार नारद मुनि के कृपा से लोग वंचित हो जाते हैं। और उसी प्रकार हम लोग भी हमारे जीवन में गुरु की कृपा से वंचित हो जाते हैं। हम लोग भगवान को ढूंढते हैं गुरु के अनुगत्य के बिना। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमारे जीवन में भी कृष्ण कभी प्रकट नहीं होंगे, हमारे हृदय के भी अनर्थों का विनाश नहीं होगा अगर हम लोग गुरु का आश्रय, उनके आदेशों का पालन नहीं करेंगे, उनके आश्रय नहीं लेंगे। तो भगवान का आविर्भाव नहीं होगा। और दूसरा कारण है कि जब देवकी के एक एक पुत्र का विनाश हो रहा था, एक एक पुत्र का जन्म होता था और वो लेके आते थे, और वंश क्या होता है, उस हाथ से लेकर कोई भी 8वां हो सकता है। कोई भी 8वां हो सकता है। इस प्रकार देखिए, इसमें और एक शिक्षा है, एक असुर लोग कभी भी देवताओं का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। काम से सोच रहे कि मैं वसुदेव के पुत्र का मार रहा हूं, लेकिन वो असल में अपने पुत्र को ही मार रहा है। तो नारद मुनि बहुत चालाकी से उनको बोल दिया, ये जो वसुदेव है तुम्हारा शत्रु है, भगवान विष्णु तुम्हारा शत्रु है। नारद मुनि बहुत को लीला होगा नहीं ना, नारद मुनि नहीं बोलेगा तो नारद मुनि की प्लेयर है, पूरा जो मूवी है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। भगवान की महिमा को प्रकट करने के लिए और लोगों के पास भगवान की कृपा पहुंचाने के लिए नारद मुनि का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी भगवान की कृपा पहुंचाने के लिए गुरु का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और उधर चर्चा कर रहे थे, कृष्ण आए थे, लेकिन हम लोगों का जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? चैतन्य महाप्रभु आए थे, क्या हम लोग का भक्त बने थे? अगर बनते तो इधर नहीं रहते आज। लेकिन प्रभुपाद जी आए, हमारे जीवन परिवर्तन, हम लोग भक्ति में जुड़ गए, है कि नहीं? तो कौन ज्यादा दयालु है, कृष्णा ना महाप्रभु ना प्रभुपाद? तो इसलिए गुरु कृष्ण से भी ज्यादा करुणामय होता है। तो इस प्रकार हमें गुरु आचार्यों की हमेशा
उनके दास दासानुदास के रूप में हमें अपने आप को स्वीकार करना चाहिए, उनके तुच्छ सेवक। जैसे जब प्रहलाद महाराज को दर्शन हुआ भगवान नरसिंहदेव का, उन्होंने वर मांगने के लिए बोला, तो प्रहलाद महाराज ने भगवान का दर्शन करने के बाद भगवान के संग, भगवान के साथ रहने का, भगवान की सेवा उनसे वर के रूप में नहीं मांगा था। उन्होंने क्या वर के रूप में मांगा? नारद मुनि के साथ। तब भृत्य सेवा, आपके जो भृत्य हैं, आपके पार्षद नारद मुनि, जिनके कृपा से आज आपकी सेवा मिला है, आपका दर्शन मिला है, उनकी सेवा मैं करना चाहता हूँ। कैसे मैं उनकी सेवा छोड़ सकता हूँ? ये हमारी परंपरा का मूड है। श्रील प्रभुपाद उनके गुरु को संतुष्ट करने के लिए प्रयास किए, हमारे गुरु महाराज लोग प्रभुपाद को संतुष्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे परंपरा का मूड है। ये भक्ति का सीक्रेट है, भक्ति का रहस्य है। तो इस प्रकार नारद मुनि की कृपा से देवकी का एक एक पुत्र का मृत्यु हो रहा था, और जब एक एक पुत्र का मृत्यु हो रहा था तो देवकी को 8वां पुत्र प्राप्त करने की इच्छा और तीव्र हो रहा है, क्योंकि देवकी और वसुदेव ने आकाशवाणी सुन चुके थे कि अष्टम गर्भ में स्वयं भगवान प्रकट होने वाले। तो इसलिए नारद मुनि के इच्छा से वसुदेव और देवकी के एक एक पुत्र का विनाश हो रहा था, और इस प्रकार भगवान का आश्रय, पूर्ण आश्रय लेने के लिए, पूर्ण आश्रय लेने का भक्त लोगों के जीवन में भी अलग अलग प्रकार के दुख आता है, क्योंकि भौतिक जगत दुखमय है, और भौतिक जगत में रहने के कारण कम ज्यादा दुख तो भक्त को भी मिलता है। लेकिन जब उनको दुख मिलता है, उनको पता है भौतिक जगत दुख है, दुखदायी है, और अभी उसको अनुभव भी हो रहा है, या भगवान करा रहा है उनको अनुभव कि वो संपूर्ण आश्रय ले पाए भगवान के चरणों में। समझ में आ रहा है? तो जब तक संपूर्ण आश्रय, द्रौपदी जब वस्त्रहरण हो रहा था, द्रौपदी क्या कर रही थी? एक हाथ से अपने आप को बचाने के लिए पहले 2 हाथ, फिर एक हाथ, पहले 2 हाथ, और फिर उनको समझ में आया कि मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा, तब दोनों हाथ उठाकर कृष्ण, इसको कहते वन पॉइंटेड शेल्टर। सरंग शरणागति हईबे जाहार, ताहारो प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो संपूर्ण रूप से भगवान की शरणागत होते हैं, ओनली केवल कृष्ण की शरण लेते हैं, कृष्ण उनकी प्रार्थना सुनते। तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का आदेश था कि पाश्चात्य दास जाके प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी इंडिया में ट्राई कर रहे थे, लेकिन एक बार किसी भी जगह में सफल नहीं हो रहे थे। तो प्रभुपाद जी के जैसे महान भक्त इंडिया में प्रचार करना क्या है? विदेश में प्रचार करके सफल हो गया है, इंडिया में प्रचार करना कठिन होगा क्या उनके लिए? जैसे इंडिया क्रिकेट मैच खेलता है, इंडिया में जीतना उनके लिए आसान है, विदेश जाके कठिन है। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी होम ग्राउंड में और विदेश में जाके जीत गया, सबको भक्त बना। तो इंडिया में जीत नहीं पाएंगे क्या? इंडिया तो और आसान है, लेकिन भगवान पर्पसफुली उनको फेल कर रहा है कि वो बाध्य हो जाए विदेश जाने के लिए। प्रभुपाद जी ने एक बार बोला है कि मैंने पूरा विरक्त हो गया था, भारत में प्रचार नहीं करने वाला हूं मैं, भारत के लोग इतने खराब हैं, क्योंकि वो ले ही नहीं रहे थे कृष्ण कॉन्शियसनेस।
प्रभुपाद जी लेक्चर है, one point I decided that never preach in India. I'll never come back to India. विदेश में अगर सफल नहीं भी होता फिर भी मैं इंडिया में नहीं आऊंगा मैं। और एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद जी के सारे बिजनेस चौपट हो गए, उनकी मेडिसिन के दुकान सब चोरी हो गए। तो प्रभुपाद सोचे थोड़ा बिजनेस अच्छा से करूंगा और बिजनेस से जो पैसा मिलेगा उससे प्रचार करूंगा। इस प्रकार प्रभुपाद जी ने प्लान बनाया था इंडिया में, लेकिन भगवान ने बिजनेस भी चौपट कर दिया, प्रीचिंग में भी सक्सेस नहीं है। क्या करेगा अभी? बिजनेस भी फेल, प्रचार भी। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरु उनके सपने में आया और कृष्ण उनके सपने में आया, निकलो इधर से, जाओ पाश्चात्य देश। तो प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, उनको विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं था। वो अपने भजन करके ऑलरेडी बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, लेकिन कृष्ण चाहते थे कि वो विदेश जाए, गुरु चाहते थे वो विदेश जाए। और प्रभुपाद जी शुरू में जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन भगवान ने उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति तैयार किया और इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व में फैल गया। फर्स्ट मीटिंग में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरु उनको आदेश दिया था उल्टा डालना। 2 दिन पहले वो उसका एनिवर्सरी था। तो इसलिए हमें गुरु का आदेश को पालन करना चाहिए, और गुरु का आदेश को पालन करेंगे तो आपके जीवन में सफल होगा ही होगा, आपके जीवन में सक्सेस आएगा ही आएगा। तो गुरु का आदेश हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, फिर भी पालन करना चाहिए, कष्ट भी हो फिर भी पालन करना चाहिए। और उसमें ही आध्यात्मिक जीवन की सफलता का सारा राज छुपा हुआ है। तो जितना अच्छा शिष्य बनेंगे उतना अच्छा भक्त बनेंगे। बिना शिष्य होकर आप भक्त नहीं बन सकते हो, बिना शिष्य बन के आप अच्छा कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण हमें बाध्य किया पाश्चात्य देश जाने के लिए। तो इस प्रकार गुरु और कृष्ण हमें करुणा करके, क्योंकि हम लोग उसको नहीं पालन करते, अटकते रहेंगे भक्ति में, फंसे रहेंगे भौतिक जगत में, भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के आसक्ति में फंसे रहेंगे। तो इसलिए बहुत बार गुरु का आदेश हमें प्रैक्टिकल नहीं लगता है, हमें सोचते कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, अभी तो मेरा ऐसी सिचुएशन है, उनको क्या समझ में नहीं आता है, ऐसे हमें समझ बहुत बार सोचते हैं। लेकिन अगर वो हम लोग नहीं करेंगे तो बहुत साल बीत जाएगा या बहुत जीवन चला जाएगा, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम कोई भी आश्रम में क्यों ना रहे, हमारे मैटेरियल ड्यूटीज को करने के साथ साथ हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। प्रायोरिटी समझते हैं ना, क्या कहते हैं? उनको हमारे जीवन में कृष्ण की भक्ति को, कृष्ण की सेवा को हमारे जीवन में सबसे आगे महत्व देना पड़ेगा। कृष्ण के धाम जाना, भगवत प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण की और गुरु के मिशन में कुछ सेवा करना, उसको ज्यादा महत्व देना पड़ेगा। तो इस प्रकार जब एक एक संतान का मृत्यु हो रहा था कंस के द्वारा, उतना ही देवकी और वसुदेव को अष्टम गर्भ के संतान के रूप में कृष्ण को पाने की इच्छा और तीव्र हो रहा।
उतना ही इस भौतिक जगत के जो असली स्थिति है, दुखदाई है, वो उनको और अनुभव हो रहा था। और अष्टम गर्भ के संतान स्वयं भगवान है। पहले उन्होंने भगवान का वरदान है, अगला 3 जन्म उनको भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन ये अभी उनको पता नहीं था, नारद मुनि को पता है, नारद मुनि को पता है। इसलिए नारद मुनि कृष्ण को प्राप्त कराने के लिए और उनके भक्ति को तीव्र कर रहे हैं। तो ये कंस को, नारद मुनि को इस प्रकार बोलना, जो इस प्रकार उदाहरण देना, कमल के उदाहरण, और देवकी और वसुदेव के 6 पुत्र का मृत्यु कराना, उसके पीछे ये एक कारण है। ये देवकी और वसुदेव को कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा को और तीव्र करे, क्योंकि जब तक तीव्र नहीं होगा तब तक भगवान नहीं आएंगे। समझ आ रहा है? तत्र लौलम एकमूल्यम जन्म कोटि सुकृति न लभते। जब तक हमारे हृदय में कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा बहुत तीव्र नहीं होगा, लोभ उत्पन्न नहीं होगा, हरे कृष्ण कृष्ण, तब ठीक ठाक ही चल रहे हैं। आपके कृपा से सब कुछ हो रहा है, आपकी कृपा से पैसा अच्छा इनकम हो रहा है, आपके कृपा से अच्छा प्रसाद मिल रहा है, आपकी कृपा से जप में अच्छा नींद आ रहा है। इसी तरीके से हम लोग भक्ति को निपटा दे रहे हैं, कष्ट नहीं कर रहे हैं। कष्ट आएगा तब कैसा भक्ति है पता चलेगा, है ना। अभी तो अच्छा प्रसाद मिल रहा है, लोग सम्मान कर रहे हैं, बातें सुन रहे हैं। जब प्रचार करोगे लोग आपका बात नहीं सुनेगा, आपको थोड़ा सा भला बुरा बोल देगा, तब कृष्ण की सेवा करने के लिए कितना आपका इच्छा है पता चलेगा। जब व्यर्थता आएगा, प्रभुपाद के जीवन में कितना व्यर्थता आया, फिर भी भगवान की सेवा नहीं छोड़ा। रास्ते में जाने के समय हार्ट अटैक हुआ, फिर भी भगवान की सेवा नहीं छोड़ा। देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया, 6 पुत्र का मृत्यु हो गया, फिर भी भगवान की सेवा नहीं छोड़ा। तो भगवान ऐसे वैसे नहीं मिल जाएंगे, भगवान ऐसे वैसे आपके पुत्र के रूप में प्रकट, भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त नहीं हो जाएंगे। भगवान कोई खिलौना नहीं है, दुकान से खरीद के लाते हैं, बच्चे को दे देते हैं। दुकान का सब्जी नहीं है, कीमत चुकाना पड़ेगा। इसलिए जो भगवान को प्राप्त करने के लिए कष्ट लेने के लिए तैयार है, सुखद में दुखद में, तो वो भगवान को प्राप्त करेगा। बहुत बार हमारे अलग अलग अनर्थों को छोड़ना बहुत कठिन होगा, काम, क्रोध, लोभ, ये सब प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। लेकिन फिर भी अगर हम लोग कष्ट सहते हुए उसको छोड़ना कष्टदायी है। इतने जन्मों की आसक्ति है, छोड़ना आसान है क्या? मछली छोड़ना, अलग अलग चीज को छोड़ना आसान है क्या? लेकिन फिर भी अगर कृष्ण को प्राप्त करना है, इसको बोल के आप छोड़ते छोड़ते उसके थोड़ा कष्ट स्वीकार करते हैं, अच्छा लगता है। पुलिस मच्छर जोल फिर भी छोड़ा है,
बंगाल के लोगों के लिए है माछेर झोल। अभी जो लोग छोड़ दिया है हम लोग, आपको लगता है कि मैंने छोड़ दिया है? कितना अच्छा है मैंने छोड़ दिया, ऐसा लगता है ना। लेकिन कुछ लोगों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। नॉन बंगाली के लिए चाय छोड़ना, लहसुन प्याज छोड़ना बहुत कठिन होता है। फिर भी अगर आप छोड़ देते हो, कष्ट को स्वीकार करते हो, कृष्ण बहुत, तभी तो उसको भक्ति कहा जाएगा ना, तभी तो उसको प्रेम कहा जाएगा, है ना। तो इस प्रकार देवकी और वसुदेव को भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट उनको झेलना पड़ा, और उन लोगों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए झेला है। ऐसे नहीं कि उन्होंने कंस के पास जाके आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है हमें 8वां पुत्र नहीं चाहिए, निकाल दो, हमारे कारागार से निकाल दो, आपका साइड ले लेते हैं। वसुदेव ने भी नहीं कहा, उतना झमेला कौन करेगा, मार दो देवकी। और उसके बाद 8वां पुत्र का जब जन्म हुआ, तब उन्होंने नहीं सोचा कि अरे मैं अगर 8वां पुत्र को गोकुल लेके जाऊंगा तो फिर आके तो जीवन नहीं बचेगा। काम से तो पकड़ लेगा उसको, चीटिंग किया तुमने, है कि नहीं। तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए और कृष्ण को कृष्ण की पिता का सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने आप को पूरा सैक्रिफाइस, आहुति दे दिया अपने जीवन को। कम से तो उसको पूरे अपने लाइफ का रिस्क लिया ना। तो देवकी और वसुदेव कृष्ण आविर्भाव के बाद, हम लोग अगले बुधवार को सुनेंगे कृष्ण के आविर्भाव के बाद वसुदेव ने वचन दिया था कि हर पुत्र को लेके जाएंगे, लेकिन कृष्ण जब प्रकट हुए, वसुदेव सत्यव्रत थे, बहुत निष्ठावान थे, धर्म का कभी भी उन्होंने अवहेला नहीं किया। लेकिन जब कृष्ण प्रकट हुए तब उन्होंने उस साधारण धर्म का पालन नहीं किया। कृष्ण को वो कंस के पास लेके नहीं गए। तो उनको पता था कि कृष्ण परम सत्य है, कृष्ण स्वयं भगवान है, और इसलिए कृष्ण का रक्षा करना ही धर्म का रक्षा है। कृष्ण को रक्षा करना ही धर्म की रक्षा है, और इसीलिए वो अपने जीवन का, क्या कहते हैं, जीवन की हिंदी में बोलो, जीवन का ये उठाकर, जोखिम उठाकर वो कृष्ण को गोकुल लेके गए। तो इसलिए भगवान उनको उनके घर में, उनके
उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। तो हमारे गुरु महाराज लोगों के जीवन में भी वैसे देख सकते हैं, कृष्ण के वाणी प्रभुपाद के मिशन को फुलफिल करने के लिए अपने पूरे जीवन का जोखिम उठाए हैं। ये आदर्श भक्त का लक्षण है। ऐसे भक्तों को भक्तगण कृष्ण को दे सकते हैं। जैसे वसुदेव ने कृष्ण को जन्म दिया, देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया, उनके पास कृष्ण है। उसी प्रकार ऐसे जो 100% सरेंडर डिवोटी जो है कृष्ण के लिए समर्पित भक्त है, कृष्ण को दे सकता है। इन्हीं भक्तों की कृपा से हमें कृष्ण प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार नारद मुनि कंस को इस प्रकार बोलने के पीछे कारण है देवकी और वसुदेव के भक्ति को और तीव्र करे। तो जब देवकी और वसुदेव के भक्ति और तीव्र हुआ तो सप्तम गर्भ के पुत्र के रूप में बलराम जी प्रकट हुए। और बलराम जी आके क्या किए, देवकी के गर्भ को शुद्ध कर दिया, तैयार कर दिया। शिष्य को रेडी कर देते हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। समझ में आ रहा है? शिष्य को तैयार करते हैं गुरु, नो मीटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। वचन देते हो आप पूरे जीवन 4 नियमों का पालन करेंगे? यस। और फिर 16 माला जप करोगे? अभी रेडी है। 1 साल कम से कम प्रैक्टिस करो और फिर दीक्षा देते हैं। दीक्षा के बाद गुरु शिष्य जब और अच्छे से पालन करते हैं तब क्या होता है, और शुद्ध हो जाते हो। और कृष्ण थोड़ा सा उनको ऊपर नीचे फेंकते हैं, थोड़ा सा उतार चढ़ाव कराते हैं लाइफ में कि फुल सरेंडर हो जाए। सबके लाइफ में कम ज्यादा आएगा। देवकी वसुदेव के जीवन में आए, प्रहलाद महाराज के जीवन, प्रभुपाद के जीवन में आए, गुरु महाराज के जीवन में आए। तो बढ़िया कोटन ऐसा मत सोचे कि भक्त हो गए हो कोई दुख नहीं आएगा। भक्त होने के बाद भी दुख आ सकता है। लेकिन भक्तों के जीवन में जब दुख आता है वो दूसरी किसी व्यक्ति का शेल्टर नहीं लेता है, दूसरे किसी चीज का शेल्टर आश्रय नहीं लेता है। उनको पता है कि कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे, कृष्ण ही हमारा एकमात्र आश्रय है। इस प्रकार भक्त का कृष्ण की आश्रय लेने की क्षत्रिय पत्नी के गर्भ से सूर्यसेन का जन्म हुआ और वैश्य पत्नी से प्रजन्न महाराज का जन्म हुआ। प्रजन्न महाराज का 5 पुत्र है, उसमें से एक है नंद महाराज, और सूर्यसेन का पुत्र है वसुदेव। इस प्रकार वसुदेव और नंद महाराज दोनों देवमीर से आए, 2-3 जनरेशन आगे है। ठीक है, तो इस प्रकार उनका फैमिली रिलेशन है, भाई है, मित्र है। समझ में आ रहा है? नंद और वसुदेव दोनों ही महान भक्त हैं और इसलिए उनका सब समय जाना आना होता था। तो इसलिए नंद महाराज वसुदेव ने रोहिणी को वसुदेव के घर, नंद महाराज के घर में पहले भेजा था, क्योंकि कंस ऑलरेडी झमेला कर रहा था रोहिणी के सुरक्षा के लिए। तो तब क्या हुआ, रोहिणी गर्भवती हो गई इधर, और फिर बलराम का आविर्भाव हुआ। बलराम का आविर्भाव के 7 दिन बाद, बलराम के आविर्भाव के साथ अभी सबको लगा कि देवकी का मिसकैरेज हो गया, देवकी का गर्भपात हो गया। तो इस प्रकार वो लोग उसको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उधर बलराम का आविर्भाव, भगवान के जो अंश है उनका आविर्भाव हो गया।
अभी देवकी और वसुदेव का कृष्ण को अष्टम गर्भ के पुत्र के रूप में प्राप्त होना और तीव्र हो रहा है। और ऐसे समय में उनको सपना आया। सपने में वसुदेव को एक बहुत सुंदर एक संतान का दर्शन हुआ, दिव्य बालक, चंद्र के जैसे उनके मुखमंडल में, कमल के जैसे उनके हाथ और उनके चरण बहुत आभूषण से सुसज्जित है। लग रहा है कि स्वयं भगवान है। देवकी को, वसुदेव को सपना आया, सारा दुख उनको खत्म हो गया। इतना सुंदर सपना देखे, बस कम से इतना टॉर्चर कर रहा था, लेकिन संतुष्टि हो। सुबह उठ के देवकी के साथ देवकी को बता रहे हैं ऐसा ऐसा एक सुंदर बालक का दर्शन हुआ। तो वसुदेव देवकी ने कहा कि पता नहीं हमें भी ऐसा एक सुंदर बालक का सपना। अब वो समझ गए कि जो आकाशवाणी थी वो सत्य है। अष्टम गर्भ के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए। इस प्रकार भगवान की भक्ति अगर हम लोग करेंगे, भगवान हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की परिस्थिति या आदान प्रदान करेंगे, जिससे हमारा विश्वास और बढ़ेगा। तो इस प्रकार उनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति और विश्वास और वृद्धि हो गया और मैच्योर हो गया नारद मुनि की कृपा से, भक्ति योग के द्वारा, भगवान की भक्ति करने के द्वारा। हर दिन लोग भगवान की कथा चर्चा करते थे। और फिर अष्टम गर्भ के संतान के रूप में, अष्टम गर्भ में कृष्ण भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने 16 कला के साथ, जो ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होता है, उस 1000 चतुर्युग एक ही बार प्रकट हुए। वो कृष्ण वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए, मन में प्रकट हुए। मन में जब उनको पूर्ण रूप से मैच्योर हो गया उनकी भक्ति, उनके मन में प्रकट हुआ और देवकी, वसुदेव के मन से देवकी के हृदय में स्थानांतरित किए। समझ में आ रहा है? और फिर देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार देवकी और वसुदेव, मतलब कृष्ण का आविर्भाव कोई देवकी और वसुदेव के शारीरिक संबंध के द्वारा नहीं हुआ। भगवान कृष्ण वसुदेव के हृदय, मन में प्रकट हुए, मन से देवकी के हृदय में, देवकी के हृदय में प्रवेश किया, स्थानांतरित किया। उसी प्रकार तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, सृष्टि के शुरू में भगवान विष्णु ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान प्रदान किया था, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो गुरु हृदय में कृष्ण को देते हैं, हृदय रूपी क्षेत्र है। तो इसलिए हृदय को कृष्ण के सेवा के, कृष्ण की आराधना के योग्य बनाना जरूरी है। इसलिए गुरु के, बलराम के हाथ में हल होता है। हल क्यों होता है? खेत को जोतते हैं और जोतने के समय क्या होता है, उसमें और भी बहुत सारा कंकर होता है, ईटा होता है, खरपतवार होते हैं, आगाछा होता है, उसको निकाल के फेंकते हैं। तो गुरु हमारे हृदय रूपी क्षेत्र को
जोतते हैं और उससे अनर्थ को निकाल के फेंकते हैं, तब भक्तिलता बीज ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज को वपन होगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार बलराम जी जोतने का काम करते, इसलिए उनके पास हॉल होता है। और बलराम के प्रतिनिधि श्री गुरुदेव हमारे हृदय रूपी क्षेत्र को तैयार करते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण आध्यात्मिक जगत से देवकी के गर्भ में वसुदेव के मन से देवकी के हृदय और हृदय से गर्भ में प्रवेश करते हैं। कृष्ण चाहते थे तो देवकी के गर्भ में प्रवेश नहीं भी कर सकते थे, बिना प्रवेश करके वो प्रकट हो सकते थे। गर्भ में प्रवेश करके, गर्भ में प्रवेश करना नहीं पड़ता है भगवान, लेकिन क्योंकि वसुदेव और देवकी ने बहुत जन्म उन्होंने तपस्या किया था भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए, और इसलिए फीलिंग देने के लिए, उनको वात्सल्य रस को पान कराने के लिए, वात्सल्य रस का आदान प्रदान करने के लिए भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। समझ में आ रहा है? लेकिन उनका प्रवेश इस भौतिक जगत के जो एक बद्ध जीव है, जो पिता के वीर्य के द्वारा मां के गर्भ में प्रवेश करते हैं, वैसा नहीं। इस भौतिक जगत में हर मनुष्य का जन्म होता है, हर जीव का जन्म होता है पिता के वीर्य के द्वारा। स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतो पनाश्रय, पुरुष के रेत कणा के द्वारा आत्मा प्रवेश करता है स्त्री के उदर में। लेकिन भगवान का आविर्भाव ऐसा नहीं हुआ, इसलिए भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, और जो व्यक्ति उसको सही तरीके से जानेंगे, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नोइति मामेति अर्जुन, भागवत गीता में हम लोग चर्चा कर रहे थे बुधवार के क्लास में। भगवान अजन्मा है, उनका आविर्भाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं और वो अपने किसी भक्त को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं, और अपनी जोगो माया शक्ति के द्वारा, जोगो माया शक्ति के द्वारा भगवान इधर सब रेडी सर बोल रहे भोग लगाए उधर क्यों, इधर तो लगना चाहिए ना, खास के क्या बात है, 2 टाइम इधर भोग लगेगा। फोन को भूखे रखो क्या?